Assalamu alaikum. Welcome to the Metropolitan Foundation online classes to all my student of class 8. My name is Miss Hina Fahim. Let's start month of August unit 6. This chapter name is MS PowerPoint 2007. I will start first topic of this chapter. Inserting picture. You can make your presentation more attractive by the inserting picture. It means स्टूडेंट आप अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई भी बहुत अच्छी पिक्चर इससे डाउनलोड कर सकते हैं. यू मे यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू द insert a picture in your slideshow. Number 1 clip art, number 2 picture from file. So student, inserting picture from clips art, 2 clips, clip art number 1, number 2 picture from file. Student, this MS PowerPoint 2007 consists drawing, Photoshop, sound, videos and the other media files called the clips that you can insert and use in your presentation. Student, you know very well this app used to the Photoshop videos and making a different attractive files. To insert a clip file in your slides, follow the given step. Number 1 click the insert tab, number 2 click slide art from the installation groups. दो तरह के होते हैं, एक तो इंसर्ट कर सकते हैं हम टैब से, दूसरा हम क्लिप्स आर्ट्स इंस्टॉलेशन ग्रुप में जा सकते हैं. द क्लिप्स आर्ट टैग पेन अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द विंडो. नंबर 3 type name of the picture you went to the search in your search for box. For example, if you want to the insert a picture of any other animals या flowers, type animal and click the go button. You get related picture. Student, you are you are going to the search option and write then animal's name, your flower's name, whatever, anything, and you can here on your screen look like this screen. Show the screen of the green dot. This is a green dot. Okay. Number 4 click on the picture you went. The picture is the insert on the slides. Notice the green dot beside the picture you went. You select it. You can rotate the picture. You can the resize on the place the picture. You can place the picture at any place inside the slide. To resize the picture, click on any of the blank circle that appear around the picture. When selected, rotate it, select it. Now drag it in the reset direction. You know very well student, dark क्या होता है. डार्क बेसिकली एक आपके सर्कल कह लें या आपकी कोई भी ऐसी जो ब्लैंक एरिया होता है, इट्स अ डार्क. Inserting picture from file. You can insert a safe image on your slides. अगर आप अपनी कोई भी फाइल को पिक्चर्स के साथ इंसर्ट करना चाह रहे हैं या उसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको किस तरीके से काम किया जाता है ये देखिए. टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल फॉलो द गिवन स्टेप. नंबर 1 क्लिक द इंसर्ट टैब. नंबर 2 क्लिक पिक्चर फ्रॉम इंस्टॉलेशन ग्रुप. मीन्स स्टूडेंट, पहले आप लोग इंसर्ट टैब क्लिक करेंगे. यू प्रेस द फर्स्ट इंसर्ट टैब एंड आफ्टर दैन यू क्लिक द पिक्चर सो इंस्टॉलेशन ऑन द ग्रुप और आपके सामने वो फाइल पिक्चर के साथ शो होने लगेगी. इंसर्ट पिक्चर डायलॉग्स बॉक्स अपीयर. आपको पता है ना डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं स्टूडेंट. दिस इज़ अ डायलॉग्स बॉक्स. यू नो वेरी वेल दिस इज़ अ डायलॉग बॉक्स जिसे हम मेन्यू बार के नाम से भी जानते हैं. I am after all read out this previous chapters and previous classes. Number 3 choose the picture file you went to the insert. Number 4 click the insert button. The picture is insert on the current slide. You can edit and modify the picture according to your need. Insert smarted.
It is a graphical way to represent your text in different features and style. ये आपके सामने डिफरेंट स्टाइल में आ सकते हैं और डिफरेंट प्रेजेंटेशन में आ सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को. टू एड स्मार्ट आर्ट इन योर प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप. नंबर 1 क्लिक द इंसर्ट टैब. नंबर 2 क्लिक स्मार्ट आर्ट फ्रॉम इंस्टॉलेशन ग्रुप. डायलॉग्स बॉक्स अपीयर, जो कि स्टूडेंट आपके डायलॉग बॉक्स में दिखाए गए हैं स्मार्ट बटन भी, और आपके प्रीवियस जो हमने पढ़े हैं दूसरे जितने भी हैं वो तमाम बटन से आपके जो हैं आर्ट बॉक्स यानी आर्ट जो बटन्स होता है या स्मार्ट बटन होता है या पिक्चर को इंस्टॉलेशन का होता है वो डायलॉग बॉक्स में आपके पास अवेलेबल होते हैं, सिर्फ आपने उसको प्रेस करने होते हैं. नंबर 3 सेलेक्ट द लेआउट ऑफ द स्मार्ट आर्ट फ्रॉम लेफ्ट पैन एंड द चूज द टैप ऑफ द स्मार्ट आर्ट. नंबर 4 क्लिक द ओके बटन. पहले आप स्मार्ट बटन को क्लिक करेंगे यानी उसके ऑप्शन को डायलॉग बॉक्स में जाके और फिर उसके बाद ओके बटन यानी एंटर को प्रेस कर देंगे. The select smart art is the insert on your slide and 2 new tabs automatically appear: design tab and format tab. Number 5 click on the text in the insert smart art and the type your text in it. It means student आप insert tab में यानी smart art पे जाके उसको insert कर सकते हैं, उसके बाद किसी भी slide को उस पर appears कर सकते हैं और किसी भी डिज़ाइन में दे सकते हैं, किसी भी format पे दे सकते हैं. अब है एडिटिंग बोल्ड्स एंड द numberings. It means you have learned about the bolds and numbering in MS Word. MS Word, these are very important in PowerPoint also. MS Word PowerPoint के साथ होना बहुत ज़रूरी है और इसका ये बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हमें जो स्लाइड टाइप करनी होती है तो हम उसे MS Word की मदद से नहीं यानी अगर वो ना हो तो हम उसे टाइप नहीं कर सकते. यू आर नॉट टाइप द help of the MS Word, without help of the MS Word. You have learned bolds and the numbering allow you use to the present matter briefly in the form of point that also make the slide look attractive. जो कि बहुत सारी आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको बोल्ड करते हैं दूसरे नंबरों को और उसमें आपकी बहुत सारी जो आपकी पिक्चर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, बहुत खूबसूरत बना के आपके सामने आपकी प्रेजेंटेशन को जो है अट्रैक्टिव. To add bolds or number, follow the given step. Number 1 select the text you want numbered and the bolded. Number 2 click the home tab. Number 3 click the bolds from the photograph group for creating bold list, or the click numbering for creating numbered list, and the choose the format you want to the gallery that opens. स्टूडेंट इट मीन्स आप होम टैब पे जाके अपने बोल्ड्स बटन को यानी फ़ोटोशॉप पे जा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी यानी फ़ोटो को चूज़ कर सकते हैं और उस पर इंस्टॉलेशन दे सकते हैं. उससे क्या होता है, हमने अभी आप पढ़ाई ना कि हमारी प्रेजेंटेशन को पिक्चर से बहुत खूबसूरत नज़र आने लगती है. दूसरा हम उस पर टाइप कर सकते हैं जो कि आपकी इस तरीके से पिक्चर्स दिखेगी. ये देखें स्टूडेंट, ये आपकी यूज़ ऑफ द इंटरनेट देखें, ये आपकी पिक्चर को शो करा और जिस पर आप टाइपिंग कर सकते हैं. यू आर टाइप फॉर दिस एनी डॉक्यूमेंट्स. सो स्टूडेंट ये आपकी कुछ इस तरीके से पिक्चर्स दिखती हैं, इस तरीके से लुक लाइक. ये देखिए, ठीक है. अब आ जाते हैं अप्लाइंग थीम. आ थीम is a set of color found and special effort. Theme provides attractive background for your slides. To apply a theme to all the slides in your presentation, follow the given step. Student it means ये theme आपकी colored को found को special कर बनाता है, आपकी जो है background को खूबसूरत बनाता है आपके background को, और then दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है. नंबर 1 क्लिक द डिज़ाइन टैब. नंबर 2 क्लिक मोर बटन इन द थीम ग्रुप. हाउ टू एडिटिंग द थीम. स्टूडेंट यू कैन चेंज द कलर फाउंड एंड बैकग्राउंड स्टाइल फॉर द करंट थीम. आप थीम से क्या कर सकते हैं, अपने कलर चेंज कर सकते हैं, आपका फाउंड चेंज हो सकता है, बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, स्टाइल एंड आपकी जो भी प्रेजेंटेशन के हवाले से उस चीज़ में आप चेंजिंग कर सकते हैं. यू आर चेंज फॉर एवरीथिंग ऑल. यू चेंज कलर द थीम, सेलेक्ट द स्लाइड्स, क्लिक
color from the theme group in the design tab and choose any color. ये देखिए, लुक इट हेयर स्टूडेंट्स, थ्री यहाँ पे आप देखिए, लुक इट हेयर, डिफरेंट कलर्स, यहाँ आप डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, जिससे आप यू आर चेंज द ऑल कलर्स बैकग्राउंड, यू आर चेंज द बैकग्राउंड फाउंड्स कलर्स एंड इज ऑल एवरीथिंग लुक लाइक दिस स्क्रीन, जिसे हम कहते हैं थीम एडिटिंग. To change the background style for the theme, select the slide, click the background style from the theme group in the design tab and choose any style of background. Student, do you know, हम अब इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं. स्लाइड मास्टर इज द स्लाइड दैट स्कोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम अप्लाइड इंक्लूडिंग फाउंड स्टाइल, प्लेस होल्डर, साइज एंड पोजिशन, बैकग्राउंड डिज़ाइन एंड कलर स्कीम. इट मीन स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, ये आपको बता रहे हैं कि थीम का मकसद क्या होता है. थीम का मकसद फाउंड को चेंज करना, आपके बैकग्राउंड को चेंज करना, कलर चेंज करना और आपकी जो है पोजीशन को चेंज करना. ये आपके थीम एडिटिंग का काम है. एनिमेशन इन द पावर पॉइंट. MS PowerPoint 2007 gave a variety of way to apply animation to your slides and to the text, graphics and other object on your slides. Student, it means ये आपकी किसी भी ट्रांसमिशन के अंदर एनिमिनेट कर सकता है, किसी भी स्लाइड्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को वेरीफाई कर सकता है. Animation slides transmission. You can control how and when you want to the slides to appear during the slideshow using the slides transmission features. To apply the slide transmission, follow the given step. Number 1, select the slide to which you want to apply the transmission. Number 2, click the animation tab. Number 3, click more button in the transmission to this slide group and a gallery appear with different transmission efforts. Number 4, select the affected you want to the apply. You see the preview affected on the slides. Click to apply the affected. लुक लाइक दिस. ये आपके डिफरेंट तरीक़ों से आपको अफेक्टेड यानी डिफरेंट तरीक़ों से दे सकता है. जो इस तरीके की दिखती है स्क्रीन, ये देखिए, डिफरेंट कट्स दे सकता है स्क्रीन को. ओके स्टूडेंट, you can also modify transmission sets, speed and sound as you the direct from the transmission to this slide group of. You can also apply the same transmission affected to all the slides. Number 5, click preview in the design tab to the preview your slides. Now click the slideshow button on the status bar and see the slideshow on your presentation with the transmission affected. Animating text and the objects. यानी कि स्टूडेंट, you can apply text, graphics, diagram, charts and other objects on your slides to the focus on important points and control the flow of the information to develop insert using to the custom animation features. To apply the custom animation, follow the given step. Number 1, select the object on the slide that you want to animate, for example the placeholder. Number 2, click the animation tab. Number 3, click custom animation from animation group. The custom animation task pane appear on the right hand side. ये आपके टास्क इस तरीके से आपके राइट हैंड साइड पे, जैसे आप डिफरेंट अपनी पिक्चर्स को प्रेजेंट करवा सकते हैं.
Now choose one of the following. Number 1. If you want to make to the object, enter the slide, show the presentation. आप अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंटेशन के साथ स्लाइड शो कर सकते हैं. विद एन अफेक्टेड क्लिक द एंट्रेस एंड देन चूज एन अफेक्टेड. एंट्रेस कर सकते हैं. इफ़ यू वेंट टू द एड एंड द अफेक्टेड टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन द स्लाइड, click impassives and then the choose an affected. Here स्टूडेंट, यहाँ देखिए इस तरीके से आप किस तरीके से अपना कर सकते हैं. पहले एंट्रेस पे जा सकते हैं, फिर आप अपने यहाँ पर आप ये देखिए जो कि मोर अफेक्टेड पर आएंगे. देन आप करेंगे ये देखिए इम्पैसिव, यानी कि यहाँ पे जाएंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी. ये स्क्रीन है आपकी, ये देखिए इस तरीके की स्क्रीन देखेंगी. इज दैट क्लियर? If you want to add and affected to an object when leaving the slide, click exit. और अगर आपको बाहर जाना तो आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे एंड देन चूज़ एन अफेक्टेड, और फिर आप कोई अपनी मर्ज़ी से दूसरा चूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू व्हेन टू ऐड द अफेक्टेड देन मार्क्स एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्पेसिफाइड पैटर्न, यूज़ द ऑप्शन motion paths and specify the pattern. Number 5, click play button to preview your slides. Run slide show the view your presentation on full screen. स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जिट पे जाके अपनी मर्ज़ी से दूसरा कर सकते हैं और फिर आप उसकी यानी मोशन पाथ्स पे जाके और फिर प्ले कर सकते हैं अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन. हाउ टू सेव आ न्यू प्रेजेंटेशन. न्यू प्रेजेंटेशन को किस तरीके से सेव किया जा सकता है. नंबर 1, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. नंबर 2, सेव, क्लिक सेव एज. नंबर 3, इन द फाइल नेम टाइप द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन. नंबर 4, क्लिक सेव. और इस तरीके से ये देखिए सेव हो जाएगी ओके करके. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर प्रेजेंटेशन. कीबोर्ड के ज़रिए किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं या उस पर किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. टू मूव द इंस्ट्रक्शंस पॉइंट, देखिए यहाँ पे स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग. F5 करेंगे प्रेस तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी प्रेजेंटेशन. परफॉर्म द नेक्स्ट एनिमेशन और द एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड. जब आप एंटर करोगे और डाउन पेज यानी एरो कीज़ के ज़रिए डाउन वाली कीज़ को प्रेस करोगे और राइट एरो पे ऊपर की तरफ करोगे तो आपकी अप एंड डाउन जो है आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट होती रहेगी एरो कीज़ की मदद से. गो टू स्लाइड नंबर. आप देखिए स्लाइड नंबर अगर आप चाह रहे हो पहले 5 आ जाए या कुछ आ जाए तो वो नंबर आप प्रेस करोगे. आपको मालूम होना चाहिए कि 5 नंबर पे है, उसके बाद एंटर कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगी वो स्लाइड. स्टॉप और रीस्टार्ट एंड द ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन. एस दबा दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन आपके पास जो है खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी. एंड अ प्रेजेंटेशन को स्केप करके और हाइपेन यानी कि आप स्केप दबाओगे डायरेक्ट तो आपके पास जो है कीबोर्ड के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है तो आपकी ये प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. रिटर्न टू द फर्स्ट स्लाइड, और वापस पहली स्लाइड पे आपको जाना है तो 1 प्रेस करके और एंटर दबा दोगे साथ में. ठीक है, ये जैसे हम नंबर पे जाना था हमें बीच में जाना है कि अगर 5 लाइन पे जाना है हम प्रेजेंटेशन की तो हम क्या करेंगे 5 के साथ एंटर क्लिक कर देंगे तो नंबर 5 पर हम आ जाएंगे. और यानी कि इस तरीके से हम अप एंड डाउन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जिस लाइन पे जाएं. फिर आपका नेगेटिव बटन एंड एनिमिनेटली यानी कि कंट्रोल एच की तरह क्या है हेडेक करता है आपकी यानी पॉइंटेड करता है, हाईलाइट कर रहा होता है. डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू. अगर आपने डिस्प्ले करना है शॉर्टकट मेन्यू को तो शिफ्ट प्लस F10 से प्रेस कर दोगे, दोनों को साथ प्रेस करोगे तो आपके पास शॉर्टकट मेन्यू आपके सामने आ जाएगा किसी भी स्क्रीन का. So student, here I ended my today lecture. I hope you all understand this topic of you have confusion related to the topic, so you can discuss with and my WhatsApp number and group as well. I will continue my
next topic related to next chapter as soon. Thank you student. Take care. Allah Hafiz.